more verses to study. क्योंकि हमारे पास कुछ आयतें हैं अध्याय करने के लिए। So that's why we will read here now in 17th chapter of First Chronicle. We will read verse 1, 2, 3, 4 and verse 11 and 12. और यहाँ पे हम पहला इतिहास 17 अध्याय 1, 2, 3 पढ़ेंगे, उसके बाद हम 10, 11 पढ़ेंगे। First we will read verses 1, 2, 3, 4 and then we will read verses 11 and 12. पहले हम 17 अध्याय की 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे और उसके बाद हम 11 और 12 पढ़ेंगे। And Brother Krishna may kindly write those verses. भाई किशन जो है इन आयतों को लिख दें। We will read one by one the verses. We will read one by one. So first I am going to read verse 1. और हम जो है एक एक करके आयत पढ़ेंगे और हम एक आयत पढ़ने जा रहे हैं। Now it came to pass when David was dwelling in his house that David said to Nathan the prophet, "See, now I dwell in a house of cedar, but the ark of the covenant of the Lord is under tent curtains." तब दाऊद अपने भवन में रहने लगा। तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारों के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। Now here we see that King David has a good heart for God. अब यहाँ पर आप देखिए कि प्रभु के दास दाऊद का जो हृदय था वो बहुत साफ सही था। And he is consulting the prophet of God. और उसने इसके बारे में परमेश्वर के नबी से बात की। Nathan was a prophet. और तब देखिए नतान जो था प्रभु का नबी था। David was a strong man of God. He was also the king and chosen one by God. दाऊद भी जो था परमेश्वर का बड़ा ही दलेर और ईमानदार सेवक था और वो इस्राएल का राजा भी था। And David loved God. और दाऊद भी परमेश्वर से प्रेम रखता था। And he loved God. He could directly contact God. He could directly talk to God. हालांकि वो भी सीधा प्रभु से बात कर सकता था, सीधा प्रभु के साथ रिश्ता रख सकता था। He was very favorite person of God. वो जहाँ तक परमेश्वर का भी बहुत ही प्यारा वो भाई दास था। But still he wants to go through the order. लेकिन फिर भी देखिए दाऊद जो है वो परमेश्वर के सेवक के द्वारा ही बात कर रहा है। We can be a very strong people loved by God. हम बहुत ही अच्छे लोग हो सकते हैं जो प्रभु परमेश्वर से बात करते हैं। But we must go through the procedure that God has expected. लेकिन हमें उसी तरीके से चलना है जो प्रभु ने ठहराया हुआ है। Now here he is consulting the prophet. उसने नबी से बात की। Because he knows the word of God comes through the prophet. उसको पता था वचन परमेश्वर के नबी के पास आता है। Now he is consulting him and telling him, I am living in a very nice house, made of very nice wood, but my Lord, he's the ark of the covenant, where things are there which God has appointed to be holy. They are kept in ordinary curtains. और उसने देखिए कहा है कि मैं दाऊद इतने अच्छे भवन में रह रहा हूँ, लेकिन मेरे परमेश्वर के जो तंबू में रह रहा है संदूक परमेश्वर का। He has a good heart. उसके पास अच्छा दिल है। He has a good care and concern for things of God. उसे परमेश्वर की सारी चीजों का ध्यान है। But still there is something more he need to consult. लेकिन इसके बाद भी देखिए एक चीज है जिसको उसने बात करनी है नबी से। While he is doing this, God is watching. और ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। God is watching every time whatever we do. परमेश्वर हर समय हमें देखता है हम जो भी कर रहे हैं। God is not only watching our outside, he is watching our heart. परमेश्वर अकेला हमारा बाहरीपन नहीं देखता, हमारा हृदय भी देखता है। A man can only see outside, but God knows inside of the inside. और इंसान बाहरीपन देखता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य का हृदय देखता है। Verse 2. आयत 2। Then Nathan said to David, "Do all that is in your heart, for God is with you." और देखिए नतान के दाऊद ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। He knows David is the man of God. वो जानता है कि दाऊद परमेश्वर का बंदा है।
And he doesn't say, David, I don't think you are very right in doing so. उसने ये नहीं कहा कि यार दाऊद मुझे ऐसा लगता है कि तू जो कर रहा है ठीक है या नहीं. We know here there are two men talking. अब यहाँ पर हम देखते हैं दो भाई बात कर रहे हैं आपस में. They are both nice people. दोनों ही अच्छे हैं. Both have a good heart to God. दोनों के अच्छे हृदय हैं. One is the man of God, another one is the prophet of God. एक प्रभु का नबी है, दूसरा परमेश्वर का दास है. They have a very nice wishful thinking to honor God. और दोनों देखिए दोनों के पास अच्छी सोच है प्रभु के लिए. Now we go to verse 3. अब हम 3 आयत में जाते हैं. But it happened that night that the word of God came to Nathan saying. उसी रात परमेश्वर का वचन नतान नबी के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह. Now you see, God has seen the action of these two people. अब देखा अपने प्रभु परमेश्वर के दोनों को देख रहा है. और देखिए जवाब But you प्रभु, know, God is above all human beings. क्योंकि प्रभु परमेश्वर सभी मनुष्यों से बड़ा है. He is the God of all things. वो हर चीजों का परमेश्वर है. His direction, His advice is perfect advice. और उसकी जो सलाह होती है वो सबसे बढ़िया अच्छी होती है. His timing is the perfect timing. उसका जो समय होता है काम करने का वो सो ही संपूर्ण होता है. His way of doing things is perfect and unique. और जो भी वो कार्य करता है वो हमेशा ही बढ़िया और संपूर्ण करता है, अलग करके रखता है. I may think many things are very, very, very nice and I can please God. और मैं बहुत चीजें जो प्रभु के लिए सोच सकता हूँ और मैं बहुत सारी चीजें प्रभु के लिए करना चाहता हूँ. The whole world may appreciate and accept. और सारी दुनिया उसके लिए तारीफ करेगी और उसको मानेगी भी. What a man, how nice he thinks. और वो कहेंगे वो इंसान कितना अच्छा है. But God shows He wants everything to be done for His own glory. और प्रभु चाहता है कि हर चीज जो हो वो प्रभु की महिमा के लिए हो. So that no man should become proud. ताकि कोई इंसान अपने ऊपर घमंड ना कर सके. Or no man should give glory to one another. और कोई इंसान दूसरे इंसान को महिमा ना दे सके. Now see, God is appearing to Nathan in a dream in verse 3. और 3 आयत में देखिए प्रभु परमेश्वर नातान नबी के पास आया. And now what is he telling? उसने क्या कहा? And God comes in action. परमेश्वर देखिए अपने कार्य पे आ गया. Probably these two people also gave some time to come in action before God can come in action. और इससे पहले प्रभु आता ये दोनों भाई जो थे वो कार्य में आए. And the Bible says that same night when these two people were talking, God did not waste any time. God came in the dream to this fellow. और देखिए जब ये दो भाइयों ने बात की है परमेश्वर ने देरी नहीं की. परमेश्वर उसी रात देखिए अपना वचन पहुंचाने आ गया. God does not delay in expressing His program. परमेश्वर अपने कार्य को कभी भी लेट नहीं करता. Now you see what is He telling to Nathan in verse 4. और उसने 4 आयत में देखा नातान नबी को क्या कहा. Go and tell my servant David, thus says the Lord, you shall not build me a house to dwell in. और देखिए प्रभु ने कहा नतान मेरे दास दाऊद से कह कि मेरे निवास के लिए घर बनवाने ना पाएगा. Now see, देखा they both are having a good desire to build a house for God, but God does not have that desire right now. देखिए दोनों के पास अच्छा हृदय है प्रभु के घर बनाने का, लेकिन प्रभु कहता है नहीं तू नहीं बनाएगा. We may like to do a lot of services to God, but if it is not in the program of God, those services are useless. हमारे पास प्रभु के करने के लिए बहुत कुछ हम सोचते हैं करना है, लेकिन अगर प्रभु की वो योजना नहीं है तो वो बेकार होगा. People will think, look, I am trying to do this for God. और लोग आके कहेंगे देखो मैं प्रभु के लिए ये करना चाहता हूँ. But God says, if it is not under my approval, you cannot do it. प्रभु कहेगा कि अगर ये मेरी इच्छा नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे. God wants things to be done according to His will. प्रभु जो सारा कार्य है अपनी इच्छा से करेगा. According to His way, according to His timing. वो अपना तरीके से अपने रास्ते से अपनी इच्छा से करेगा. I may think I am a more than 70-year-old man. मैं सोच सकता हूँ मैं तो 17 साल का हूँ. 70s
70. I'm not 17. I'm 70. मैं सोच सकता हूँ मैं 17 का हूँ, 70 का हूँ, 70. Yes. Brother means 70, but he could not get the right word. वो पंजाबी, there's a problem in Punjabi and Hindi. Because of Punjabi and Hindi. I know that. No, that's okay, brother. God bless you. Amen. So I am saying that I am a 70-year-old man. और By grace of God. मैं प्रभु के अनुग्रह से देखिए 70 का हो गया हूँ. And by grace of God, God started using me for few things in His service since last some years. और प्रभु परमेश्वर जो है कुछ समय आखिरी समय में मेरे साथ जो है कार्य करना शुरू कर सकता है. And there are so many examples in the Bible when God used people after a certain age, at certain time, in certain manner. और बाइबल में हमारे पास बहुत सारी उदाहरणें हैं जहाँ प्रभु ने बहुत सारे सेवकों को, लोगों को बड़े आखिरी समय में इस्तेमाल कर लिया. God knows the timing. प्रभु समय जानता है. If I ask God, God, now I'm a very weak person. I don't have much energy to walk around. Why did you not use me when I was very young? और मैं फिर प्रभु को अगर ये कहूँ कि प्रभु हो, मैं तो अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, तूने तब क्यों नहीं मुझे इस्तेमाल किया जब मैं बहुत जवान था, ऊर्जावान था, तब क्यों नहीं इस्तेमाल, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ. How can I question God? मैं प्रभु को कैसे सवाल कर सकता हूँ. I had to continuously wait unless God expresses His will upon me. मुझे तो लगातार इंतजार करते रहना है कि जब तक प्रभु की तरफ से जवाब न आए. I'm just a humble brother in Christ. और प्रभु के सामने हम जो है हलीम है भाई. But we have the examples of great men of God in Bible. हमारे पास परमेश्वर के वचन है, एक बहुत बड़ी उदाहरण है भाई. God spoke to Abraham when he was of certain age. और प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम से बात कर ली जब देखिए वो कैसी उम्र में था, किस उम्र में था. God spoke to Moses when he was of certain age. और देखिए प्रभु ने मूसा से कब बात की जब वो किस उम्र में था. God converted Saul to Paul when he was of certain age. और देखिए प्रभु ने शाऊल को पौलुस बदल दिया जब वो देखिए किस उम्र में था. God called Brother Branham for his ministry when he was of certain age. और देखिए प्रभु परमेश्वर ने भाई ब्रानम को भी तब बुलाया जब वो किस उम्र की किसी और पड़ाव में था. Likewise he did for dear Brother Frank. इसी तरह उसने भाई फ्रैंक को भी बुलाया भाई. Likewise he does to all the humble and faithful people in the life in everybody. इसी तरह प्रभु परमेश्वर ने बहुत सारे भाइयों को इसी तरह बुलाया है जिंदगी में. God uses a brother and a sister for His own glory. प्रभु परमेश्वर भाई बहनों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है. He has a unique way of using everybody. उसके पास उनको इस्तेमाल करने का बड़ा अजीब तरीका होता है. Provided we know how to wait on the Lord. हमें तो उसका इंतजार करना होता है. Provided we have a good heart for God. और हमारे पास प्रभु के लिए अच्छा हृदय होना चाहिए. We cannot show that heart to man. हम अपना हृदय मनुष्य को नहीं दिखा सकते. Man cannot judge us properly. मनुष्य जो हमें अच्छी तरह से नहीं जान सकता. Because the one who is judging even his heart or her और जो हमें क्योंकि जांच रहा होता है उसका खुद का भी दिल जो हृदय अच्छा नहीं होगा. Only God can. सिर्फ प्रभु हमें जान सकता है Or His word will. और उसका कलाम हमें जान सकता है. Jesus said the word which I am speaking it will judge you. प्रभु कहता है कि जो कलाम मैं तुझे दे रहा हूँ ये तुम्हें जांचेगा न्याय वाले दिन. Because Jesus is the word. क्योंकि प्रभु यीशु वचन है And word is God. और वचन परमेश्वर है. So only God judges us through His word. सिर्फ प्रभु हमें जान सकता है अपने कलाम के द्वारा. So here the good thought of two people was looking good to everybody, looking good to read, but God has a different program. यहाँ पे आप दो भाई देखिए जिनका अच्छा हृदय है, प्रभु के लिए अच्छा करना चाहते हैं, सभी के लिए वो अच्छा दिख रहा है, लेकिन प्रभु ने वो रिजेक्ट कर दिया. In verse 4, God told Nathan to go and tell David. और 4 आयत में हम देखते हैं प्रभु ने नतान नबी को कहा कि जाकर दाऊद से कहे, You shall not build me a house to dwell in. तुम मेरे लिए घर नहीं बनाओगे. You are talking very nice. Your thought is good. प्रभु ने कहा तुम बहुत अच्छी बात कर रहे हो, तुमने बहुत अच्छा सोचा. God wants to say He has a better program. प्रभु ने कहा मेरे पास उससे बड़ी अच्छी योजना है. Otherwise, the man will think
I have the best program. इधर नहीं तो इंसान कह देता कि मैं सबसे बड़ा मैं हूँ प्रोग्राम करने बनाने वाला। God says you may be very good, I appreciate, but you are not the best. प्रभु ने कहा बहुत अच्छा सोचा तुमने, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन जो है मेरे पास अच्छा इंतजाम है सबसे। There is only one absolute and perfect, that is God Himself. सिर्फ एक ही संपूर्ण है, एक ही महान है, वो प्रभु परमेश्वर खुद है। That is why in all the examples, even in the written word and even now in our life, we know that very many good men of God, they are very good, but still they have their own weaknesses and mistakes. हम बाइबल में भी जानते हैं कि बहुत सारे हुए हैं ऐसे दास आज भी हैं जो बहुत अच्छे लोग हुए हैं, लेकिन फिर भी उनमें कमियां कमजोरियां थी। We also know that David had mistakes. हम भी जानते हैं कि दाऊद से भी गलतियां हुई। फिर Many prophets and apostles had mistakes. बहुत सारे सेवकों ने, प्रेरितों ने, प्रभु के दासों ने गलतियां की। That is why God even took time to teach them, correct them. इसीलिए प्रभु ने अपना समय पर आने पर उनको ठीक किया, सुधार दिया। So here God has given His will that tell David, you will not build a house for me. यहाँ पे प्रभु दाऊद को कह रहा है कि तू मेरा घर नहीं बनाने पाएगा। Now, just for little reference, we will read verse 5 also. और हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, हम 5 आयत में पढ़ते हैं। For I have not dwelt in a house since the time that I brought up Israel, even to this day, but I have gone from tent to tent and from one tabernacle to another. क्योंकि जिस दिन से मैं इजराइलियों को मिस्र से ले आया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। Because God knows the future. क्योंकि प्रभु परमेश्वर भविष्य जानता है। God knows what is coming in future. प्रभु जानता है भविष्य में क्या आ रहा है। And God is giving him an explanation here. और प्रभु यहाँ पे बयान कर रहा है That since he brought up Israel, और कहता है जब से तुम्हें मैं इजराइल मिस्र से निकाल लाया हूँ, I have not dwelt in a house. और मैं कभी घर में नहीं रहा। He has been showing them in a way as a token that there is an action going on. और देखिए यहाँ प्रभु परमेश्वर अपना चिन्ह बता रहा है। He says, even to this day, I have gone from tent to tent. और प्रभु कहता है कि तब से लेके अब तक जो है मैं तंबू से तंबू ही जा रहा हूँ। He is telling them about a journey, about a history, about a progressive way. वो प्रभु परमेश्वर देखिए इतिहास बता रहा है, सफर बता रहा है तब से लेकर अब तक अपना। Now, why God is telling this? और प्रभु ये क्यों बता रहा है? Is God not liking that a tabernacle should be made for God? क्या प्रभु परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी जगवेदी बने? Is he rejecting the good heart of Nathan and David? क्या वो दाऊद का जो अच्छे दिल से जो इच्छा थी वो प्रभु परमेश्वर उसको रिजेक्ट कर रहा है, रद्द कर रहा है? Certainly not. उस वक्त तो देखा जाए, देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। Because we have to wait on the will of God. लेकिन हमें इंतजार करना है परमेश्वर की उस मर्जी का। And let us go to verse 11. और आइए 11 आयत में जाते हैं। God is talking here. तो देखिए प्रभु यहाँ क्या कह रहा है? It shall be when your days are fulfilled, when you must go to be with your fathers, that I will set up your seed after you, who will be of your sons, and I will establish his kingdom. जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके राज्य को स्थिर करूंगा। And verse 12. तो 12 He shall build me a house, and I will establish the throne, his throne forever. मेरे लिए वही घर बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदा के लिए स्थिर रखूंगा। Verse 13. 13 I will be his father, and he shall be my son, and I will not take my mercy away from him, as I took it from him who was before you. मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा, जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझसे पहले थी हटाई, वैसे मैं उस पर से ना हटाऊंगा।
And I will, 14th verse, I will establish him in my house and in my kingdom forever, and his throne shall be established forever. और वरना उसके अपने घर को और अपने राज्यों में सदैव स्थिर रखूंगा और उसकी राजगद्दी को सदैव अटल रहेगी। Verse 15. 15। According to all these words and according to all this vision, Nathan spoke to David. इन बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। Now you see, क्या आपने देखा here, प्रभु यहाँ क्या कह रहा है? God has opened up his mind to the people of God, his people. प्रभु परमेश्वर ने अपने लोगों के दिलों दिमागों को खोला। Sometimes we have a very limited thinking to limit God within four walls or within a nice building. हम कई बार हमारे पास एक छोटी सी सोच होती है चार दीवारी की बस। And we think by doing God we are doing a great job. Yes, this is our thinking that we are doing great job, and with good heart we are thinking, but God has a bigger plan than this. और कई बार हमें लगता है कि ये तो हमने बहुत बढ़िया कर दिया, बड़ा अच्छा कर दिया, लेकिन प्रभु के लिए उससे बड़ा इंतजाम होता है। Most important is to have a good heart for God. सबसे बड़ी बात है कि आपका हृदय जो है सही होना चाहिए। Where God can be worshipped, where God can be kept happy, where people will come to worship and come together and please God. जहाँ पे प्रभु खुश रहे, प्रभु की आराधना हो, जहाँ प्रभु के लोग आए। God is giving him an example. प्रभु ने यहाँ उदाहरण दी। Since I raised Israel, I have not lived only in one tent. प्रभु ने कहा कि जब से मैं मिस्र से आया हूँ तब तक मैं एक तंबू में नहीं रहा। I have gone from tent to tent. मैं तंबू से तंबू जाता रहा। People to people. लोगों के बीच में। God cannot only live with one man. परमेश्वर हमेशा एक आदमी के साथ नहीं जुड़ा रहता। He does not live only in one building. वो सिर्फ एक ही बिल्डिंग से नहीं जुड़ा रहता। We are the tents. हम तंबू है जहाँ प्रभु हमारे दिलों में रहता है। We are the living tabernacle of God. हम जो है आज प्रभु परमेश्वर की जिंदा जगवेदी हैं। In that verse, God has spoken a very, very deep and mysterious meaning. और यहाँ पे प्रभु देखो कितनी गहराई से बड़ी अद्भुत बात बता रहा है। And then he tells them a mystery. और यहाँ पे प्रभु इसे वेद भी बता रहा है। 11, 12, 13, 14, 10, 15 verse. और जो हमने पढ़ी है 11, 12, 13, 14, 15 तक आए तो He says, उसने कहा I will raise a seed from you. वो कहता है मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। I will bring a seed from your genealogy. मैं तेरे वंश में से वंश बनाऊंगा। I will bring a seed. और मैं तेरे उस वंश लाऊंगा तेरे तुझ में से। And what will happen? और तब क्या हुआ? And you will not be able to see that. और देखिए दाऊद उस वक्त नहीं वहाँ देख रहा था। In 11th verse he says, David, when your days are fulfilled. उसने कहा जब दाऊद तेरी आयु पूरी हो जाएगी, When you will be no more physically living on this earth. जब तुम शरीर में से जमीन पर नहीं होगे, And you will go to your fathers. और जब तुम अपने बुजुर्गों के साथ सो जाओगे, That means you will physically sleep. इसका मतलब जब तुम शारीरिक रूप से बुजुर्गों के साथ सो जाओगे। And then I will raise up a seed after you in your fellow. और तब जाके तुम्हारे बाद जो है वो मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा। And who will be of your sons? और जो तुम्हारा ही पुत्र होगा, He will come out from your generation. वो तुम्हारे ही वंश से निकलेगा। And I will establish his kingdom. और मैं उसका राज्य बनाऊंगा। Today as believers we know, brethren, who he is talking about. और आज के विश्वासी के हम जानते हैं यहाँ प्रभु किसकी बात कर रहा है। He is talking about the Lord Jesus Christ. और देखिए यहाँ वो प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा है। हालेलुया। There is only one kingdom which cannot be broken or destroyed. एक ही राज्य है जो आना था, जो कभी भी ढा नहीं सकेंगे, गिरा नहीं सकेंगे। In 12th verse he says, I will build me a house. He shall build me a house and I will establish the throne forever. और देखिए 12 में कहता हूँ एक घर वही बनाएगा और उसकी राजगद्दी हमेशा रहेगी।
can we see that there is any other throne which is staying forever? क्या हमें पता है कि कोई और ऐसा राज्य है जो कभी ना गिराया जाए, हमेशा रहे इसके अलावा? He told David, you have a very good ambition, very good desire. उसने कहा, ओ दाऊद, तूने बड़ा अच्छा हृदय रखा है। I am happy with your desire. मैं तेरी उस ख्वाहिश से खुश हूँ। But more happy I will be when you will understand what is my desire. पर मैं तब खुश होऊंगा जब दाऊद तू मेरी योजना समझेगा। This is a great example for us, brethren. ये हमारे लिए बहुत बड़ी उदाहरण है भाइयों। We want to do many good things for the Lord in our life. हम प्रभु परमेश्वर के लिए बहुत अच्छी चीजें कार्य करना चाहते हैं। And we claim a great pride and great appreciation through people and for ourselves, and thinking God is appreciating my work very well. और हम जो अच्छे कार्य करते हैं, लोग भी चाहे उसकी प्रशंसा करें, हम भी कहें कि बहुत अच्छा कर रहे हैं हम। And God will glorify me for this. और प्रभु परमेश्वर इसके द्वारा जो है मुझे भी आशीष देगा। God does not glorify man. परमेश्वर जो है वो मनुष्य को महिमा नहीं देता। He glorifies only himself and those who belong to him. प्रभु परमेश्वर सिर्फ अपने आप को महिमा देता है और जो उसके साथ रिश्ता रखती है चीजें। Unless we wait into the plan and project of God, we cannot be glorified. और जब तक हम उसकी योजना की, उस प्लान की इंतजार नहीं करते, तब तक हम नहीं हमें महिमा देगा। And whose throne he is talking about in verse 12? और देखिए 12 आयतों में किसके बारे में बात कर रहा है? God is talking here, we know that. और हम जानते हैं प्रभु किसके बारे में बात कर रहा है। And he says in verse 13, I will be his father and he shall be my son, and I will not take my mercy away from him as I took it from him who was before you. 13 आयत में, मैं उसका पिता ठहरूंगा और मेरा पुत्र ठहरेगा, जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझसे पहले थे हटा ली थी, पर मैं वैसे उससे ना हटाऊंगा। Yes. So now you know हम जानते God हैं is talking about who. प्रभु किससे बात कर रहा है, हम जानते हैं। And then God is completing his word here. तब जाके प्रभु यहाँ अपना कलाम पूरा करता है। He says, I will establish him in my house and in my kingdom forever, and his throne shall be established forever. वरना उसको अपने घर, अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा और उसकी राजगद्दी हमेशा अटल रहेगी। And 15th verse, according to all these things and according to all this vision, Nathan spoke to David. और इन बातों और इस दर्शन के अनुसार नतान ने दाऊद को समझा दिया। 15 आयत। Nathan was the prophet of God. नतान जो था वो परमेश्वर का नबी था। He listened to God carefully. वो प्रभु को बड़े ध्यान से सुनता था। And he immediately went and told everything to David. वो उसी वक्त दाऊद के पास गया और जो भी प्रभु ने कहा था दाऊद को बता दिया। And then we read from the 16th verse onwards to the rest of the chapter. तब अब आगे हम जो है 16 से आगे तक पढ़ते हैं। That David is also accepting the will of God. और दाऊद भी जो है परमेश्वर की ही मर्जी की उम्मीद कर रहा था। Because David knows who God is. क्योंकि दाऊद भी जानता था कि परमेश्वर क्या है, कौन है। In the first place, instead of making a direct construction of tabernacle, he consulted with a man of God called Nathan. इससे पहले वो सीधा जाके जो उस घर को बनाने लगता, उसने पहले परमेश्वर के नबी से बात की। And he believed the word which came to Nathan the prophet. He believed the word which came from God. और उसने भी विश्वास किया कि जो नतान के पास वचन आएगा वो परमेश्वर का ही वचन आएगा। And then he gave consent, he gave acceptance, he gave yes and amen to the word of God, as God said. तब देखिए जो भी परमेश्वर का कलाम नतान नबी के द्वारा दाऊद के पास आया, उसने उसको कबूल किया और उस पे आमीन किया। And then in verse 24, David says, और देखिए 24 आयत में दाऊद ने कहा, Let it be established that your name be magnified forever, saying, The Lord of hosts, the God of Israel, is Israel's God. Let the house of your servant David be established before you. और देखिए 24 आयत में दाऊद ने कहा,
तेरा नाम सदा अटल रहे और यह कहकर तेरी बड़ाई सदा की जाए कि सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर है, बल्कि वह इज़राइल ही के लिए परमेश्वर है, और तेरा दास दाऊद का घराना तेरे सामने स्थिर रहे। Now he has accepted every program that God spoke. और देखिए वो इसी की उम्मीद कर रहा था कि सब कुछ जो है प्रभु परमेश्वर के ही मुताबिक हो। So now here we know that it is good to have a will, a desire to do things for God. देखिए यहाँ हमने देखा है कि अच्छी बात है परमेश्वर के लिए अच्छा हृदय रखना और अच्छा करना। Because all our ancestors and all our forefathers and all the patriarchs, they knew that God appears on the altar, on the altar when the sacrifice is being done, God appears there. और हम जानते हैं अपने कलाम के द्वारा सभी प्रभु के दास नबियों के द्वारा कि प्रभु परमेश्वर जो है जब उसकी जगवेदी पर देखिए कुर्बानी दी गई तो परमेश्वर वहाँ प्रकट हुआ है। People could see the Shekinah glory and the smoke coming up and showing the presence of God if the sacrifice is accepted by God. और हम जानते हैं कि जब प्रभु परमेश्वर कुर्बानियों को कबूल कर लेता था तो उस तंबू में उस जगह पे बहुत सारा जलाल आ जाता था, धुआं आ जाता था, तब लोग समझ जाते थे कि परमेश्वर ने कुर्बानी को कबूल कर लिया है। God will manifest that he is pleased. और प्रभु परमेश्वर ये बता देता था कि मैं इस जगह पे उतर आया हूँ। So here David, a man of God, he had a good desire, a good heart to give respect to God and create a place of worship so that the Ark of Covenant could be kept there. और देखिए प्रभु के दास दाऊद ने यहाँ पे बहुत अच्छी सोच रखी है, अच्छा हृदय रखा कि परमेश्वर के लिए मैं घर बनाऊंगा और परमेश्वर का जो आयत का संदूक है वो मैं वहाँ रखूंगा। It is a good desire to worship God and good desire to have a good way, to find a good way to worship God. ये अच्छी बात है कि अच्छा हृदय रखना, परमेश्वर की उपासना करना, अच्छा दिल रख के उसकी भक्ति करना, उसके लिए कुछ करना। David had that. तो दाऊद ने किया है। But God told him how to do it. परंतु प्रभु ने बताया है कि इसको कैसे करना है। How it will be done, he was given the plan. और किस तरह करना है परमेश्वर ने इसकी योजना बताई। We know when Noah was directed to build an ark, और हम जानते हैं कि नूह भी जो था वो जो बना रहा था किश्ती, he was a man of God, he was a prophet. वो भी एक नबी था और परमेश्वर का ही दास था। And we know that those his souls were saved through the water along with other creatures in the ark, those who were in the ark. They were saved. हम ये भी जानते हैं कि जो उसने प्रभु के कहे अनुसार किश्ती बनाई उसने बहुत सारे और भी अपने इंसानों को और जीव जंतुओं को भी बचाया। We know the presence of God was in the ark. और हम ये भी जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो खुद था वो उस किश्ती के अंदर मौजूद था। But Noah did not make the ark according to his brain and his intelligence and his technology. लेकिन नोआ ने वो किश्ती जो है अपने दिमाग से, अपनी ही दिमाग की सोच से नहीं बनाई वो किश्ती उसने। He was given a plan how to do it by the plan was given by God. वो देखिए जो परमेश्वर की तरफ से प्रोग्राम योजना दी गई थी उसके द्वारा उसने वो किश्ती बनाई थी। Likewise, God gave a plan to David. इसी तरह जैसे परमेश्वर ने दाऊद को योजना दी। Likewise, when you have a good heart towards God, I want to create a place of worship for you, or I want to have a group of people to worship with me, to please you, God, to make you happy, and God will say, this is a good thought, but wait for my plan. और जैसे ही प्रभु हमको कहते हैं प्रभु हम तेरे लिए घर बनाना है, यहाँ तेरे लोग आए बैठे उपासना करें, और परंतु प्रभु कहे कि बहुत अच्छी बात है लेकिन तुम्हें इंतजार करना है। We cannot please God by our own design. हम अपने तरीके से प्रभु को खुश नहीं कर सकते।
when all the other type of people, other sects and other faiths people, they want to make things for God, they want to make a temple or they want to make a building, they will bring big architects and decorators to make a temple for God. और हम जानते हैं कि बहुत सारी दुनिया जो के लोग हैं जो बहुत बड़े घर बनाते हैं, जगह बनाते हैं, बड़े आर्किटेक्ट को बुलाते हैं और बहुत सारी चीजें रखते हैं उसके अंदर. They will call big minister to do the inauguration of that beautiful building. और हम ये भी जानते हैं कि वो बड़े जो है वो राजनेताओं को बुलाते हैं उसकी ओपनिंग के समय में उनसे कटवाते हैं रिबन सेरेमनी के समय. They will make a big publicity all over the world, all over the country, that look what we have done to please God. और वो दुनिया भर में ये चीज दिखाते हैं कि देखो हमने क्या किया है प्रभु के लिए, देखिए. Our God will sit in this temple. और कहेंगे हमारा जो प्रभु है इस मंदिर में रहेगा. And now he will get more respect. और देखिए ताकि वो और ज्यादा इज्जत पा सके. But think about the foolishness, about how God thinks about those people. और देखिए मूर्खता, देखिए जो प्रभु के बारे में सोचते हैं, मूर्खता देखिए. They think they can decorate God, they can polish God, they can make God to wear good clothes, and they can put the good position for God. वो सोचते हैं कि हम प्रभु को बना सकते हैं और हम अपने हाथों से प्रभु को सुंदर बना सकते हैं पॉलिश करके, और हम प्रभु परमेश्वर को बहुत अच्छा बना सकते हैं. देखिए how can they uplift the Creator being a creation? अब देखिए जो रचना है वो अपने रचयिता को कैसे बना सकती है, उठा सकती है. What a foolish idea is this! The creation is trying to please God with the things made by their own hands and their own ideas. अब देखिए कि रचना जो है वो कैसे ये सोच सकती है, मूर्खता वाली बात, कि वो अपने रचयिता को उन रचना के द्वारा बना सकते हैं. We heard a beautiful song which was sung by our sister this morning. हमने आज सुबह गीत सुना जो हमारी बहन ने गाया. That says, Lord, change my heart. कि प्रभु हमारे हृदय को बदल दे. Lord, you are the potter, I am the clay. कि प्रभु परमेश्वर तू जो है वो मिस्त्री है और हम तेरी जो है वो एक बनावट है. The clay submits itself, remaining soft, into the hands of the potter. और जो मिट्टी का बर्तन है वो अपने मालिक, अपने गुमियार के हाथों में ही सुरक्षित है. Let the potter is the creator, I am the creation. और देखिए अब जो गुमियार है वो बनाने वाला मालिक है, लेकिन वो रचना नहीं है. और जो बर्तन है वो अपने बनाने वाले गुमियार से बड़ा नहीं हो सकता, उसे नहीं बना सकता. Clay needs somebody to use his hands and skill to convert the clay into a pot. क्योंकि मिट्टी को एक उस मालिक की जरूरत होती है कि जो उसे पकड़े और उसे एक आकार दे. So it is not only that we have a good desire. ये नहीं है कि हमारे पास अकेला अच्छी इच्छाई रखनी है. We should submit that desire to God. हमें वो इच्छा प्रभु के आगे समर्पण नहीं करनी है. Lord, let your will be done. और कहना है कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो. Because when it is approved by your plan and procedure, then it becomes acceptable by you. और जब देखिए जो योजना कार्य प्रभु के मुताबिक होगा तब वो कबूल भी होगा. So any worship which is done according to plan of God will be acceptable to God. और जो भी योजना प्लानिंग जो है प्रभु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगी वो कबूल होगी. We know one story that we read. We are not going into the detail. और हमारे पास एक और है ये बाइबल में ये किस्सा, लेकिन हम ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते. Whenever we have time at our home, और जब हमारे घरों में समय होगा we can read from the book of Leviticus chapter 10. और तब हम लेवी व्यवस्था का जो है चैप्टर और उसकी 10 आयतें पढ़ सकते हैं. 10 अध्याय. The 10th chapter, there are many verses which we can read. और लेवी व्यवस्था की जो है वो 10 अध्याय में कुछ पढ़ सकते हैं. We know the history of Nadab and Abihu.
हम जो है नदाब और अबीहू की इतिहास जानते हैं। They wanted to please God and they wanted to create an altar for God and they wanted to offer fire to please God. Yes. और दो हारून के दो बेटे हुए नदाब और अबीहू, जिन्होंने परमेश्वर के घर में जाकर और जगवेदी पर जाकर उन्होंने भी कोशिश की परमेश्वर को खुश करने की। But the fire they offered was according to their design. लेकिन जो उन्होंने वो कुर्बानी वो धूप तैयार किया था उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार किया था। And that was not liked by God. और ये उस तरह से उन्होंने तैयार नहीं किया था जैसा परमेश्वर चाहता है। God had set a pattern. Your fire which you offer must come from a particular place, not from this place, from another place. प्रभु परमेश्वर ने जैसा बताया था कि जो अग्नि जैसे चाहिए थी वो उन्होंने वैसे भी की थी, वो उल्टा कर दी थी, दूसरा स्थान पे गया। If you don't do it my way, I will not accept it. Yes. प्रभु ने कहा अगर तुम मेरे मुताबिक नहीं लाओगे भेंट मैं नहीं कबूल करूंगा। And so the fire came down from heaven and they were killed. अब देखिए कि वहाँ पे प्रभु की तरफ से आग आई और दोनों भस्म हो गए। Think about it. They were trying to please God with the fire and with full sincerity and good heart and dedication. अब देखिए ये दोनों ने ही अच्छे हृदय से अपनी तरफ से बड़ा अच्छा जो था धूपदान तैयार किया था परमेश्वर को खुश करने के लिए, एक अच्छे हृदय से। They were not going according to the design of God. लेकिन वो जो था धूपदान वो परमेश्वर की अकॉर्डिंग नहीं तैयार किया हुआ था। Even today, brethren, the God's approved and acceptable place of worship is in His Word. आज भी प्रभु परमेश्वर की जो उपासना करने की जगह है, भेंट चढ़ाने की जगह है, वो उसका कलाम है। We are the living temple of God. हम प्रभु परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं। We have to keep this temple holy because the Holy Spirit must live inside हमें this. इसे पवित्र रखना है क्योंकि पवित्र आत्मा इसमें वास करता है। And Holy Spirit will only teach us how to keep this temple holy and how to make the worship acceptable to God. और पवित्र आत्मा ही हमें बताता है कि इस मंदिर को कैसे पवित्र रखना है। And the Holy Spirit will not guide us if we don't have a good heart. अगर हमारे पास अच्छा हृदय नहीं होगा तो पवित्र आत्मा हमें नहीं अगुवाई करेगी। A good heart will always wait on the Lord and on the Word of God. और परमेश्वर का जो हृदय होता है वो परमेश्वर की मर्जी का इंतजार करता है। And then that God will reveal through Holy Spirit what is His will. अब तब जाके पवित्र आत्मा उस पर प्रकट करता है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। Without the revelation from God, we cannot please God. We cannot even do His will. भाई परमेश्वर के प्रकाश के बिना हम नहीं जान पाएंगे कि उसको कैसे खुश रखना है। We know that Cain wanted to do a wonderful sacrifice on the altar of God. हम जानते हैं कि काइन ने भी अपने तरीके से बहुत अच्छी कुर्बानी तैयार की थी और उसने भी प्रभु को चढ़ाई। He got very best things for pleasing God. उसने बहुत अच्छी चीजें बनाई थी परमेश्वर को खुश करने के लिए। But he had not waited for the will of God. He did not have the revelation what type of worship God is expecting. लेकिन उसके पास प्रभु की तरफ से वो प्रकाश नहीं था कि परमेश्वर कौन सी कुर्बानी से खुश होता है। Whereas the humble child of God, Abel, knew, he waited and he got the revelation from God because God knew his heart. क्योंकि प्रभु का जो बच्चा होता है वो बड़े हलीम दिल से प्रभु की मर्जी का इंतजार करता है कि प्रभु प्रकट करे। Even today, brethren, we know that God is found in His Word. God is not found in any church. God is not found in any denomination. God is not found in any strange teaching in the name of Christianity. क्योंकि प्रभु परमेश्वर कोई भी अजीब चर्च नहीं ढूंढ रहा, कोई ऐसा तालीम नहीं ढूंढ रहा, कोई ऐसा अजीब सा शख्सियत अजीब सी तालीम नहीं ढूंढ रहा है। प्रभु परमेश्वर अपने वचन में ही है। And He accepts any worship which is done in His Word. और वो उसी ही उपासना को कबूल करता है जो उसके कलाम के मुताबिक है।
then only it is the spirit and truth. और यही है आत्मा और सच्चाई जो है, His word is truth, उसका वचन सत्य है, and the spirit will teach us the truth. और जो आत्मा होता है वो हमें सिखाता है सत्य, If we have a good heart. अगर हमारा हृदय अच्छा है। So likewise in today's teaching and preaching, brethren, और इसी तरह आज मेरे भाइयों जो भी प्रभु की शिक्षा प्रचार है, which is going like a Babylon in this whole world, everybody is trying to please God in their own way. और जहाँ देखिए बेबीलोन की तरह ही हो गया, वो इतनी गड़बड़ है और हर इंसान प्रभु को ही खुश करने की सोच रहा है। And they say, come to my church, we have the good teaching. वो कहता है कि मेरे चर्च में आओ, मेरे चर्च में सही शिक्षा है। There is lots of good things there. You will go to heaven if you learn the teachings and preaching we teach here. वो कहते हैं जो हम शिक्षा देते हैं वो तुम्हें जो है स्वर्ग लेके जाएगी। देखिए, Bring your tithes and offerings here, it will take you to heaven. अगर तुम ये दसमांध देंगे, अपना कमाई का हिस्सा दोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे। But they are sadly mistaken. वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, बड़े दुखी Oh, God is laughing on them. प्रभु देखिए उन पर हंस रहा है। Bringing tithe and offering is not bad. देखिए, दसमांध देना, दान देना कोई बुरी बात नहीं है। It is in the word of God. ये वचन में आया है, बिल्कुल। What is more important is your faith and your teaching and your obedience to the word of God. और उससे ज्यादा क्या जरूरी है कि तुम्हारी तालीम, तुम्हारा ईमान, तुम्हारी आज्ञाकारी वचन के साथ हो। People go for seeing the miracles. People go for seeing the other pleasures. People go for other publicity material with the churches and they run in big numbers to them. और देखिए लोग क्या ढूंढते हैं, लोग क्या चाहते हैं, बड़े बड़े मौजे चमत्कारों के पीछे बड़ी भीड़ों के जा रहे, बड़ी मशहूर जगह हो वहाँ जाना चाहते हैं। देखिए, Because they have the word of God. In the name of word of God, whatever is being preached is not the truth. It has a lot of mixing. And it is being preached which people like. और ये जरूरी नहीं है कि जो भी प्रचार हो रहा है वो प्रभु के वचन के अनुसार हो रहा है। बहुत सारी शिक्षाएं इतनी मिलावटें हैं कि लोगों को खुश करने वाली तालीमें हैं। देखिए, More people go to those churches where the pastor preaches what the people like to hear. और देखिए बहुत सारे लोग ऐसे चर्चों में जाना पसंद करते हैं जहाँ पे जो प्रचार पास्टर है उनके मुताबिक प्रचार करे। They want God to tune himself according to the people. वो तो चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर हमारे तरीके से चले। And they say we have a wonderful pastor and teacher. फिर जाके लोग कहते हैं हमारा तो पादरी प्रचारक बहुत ही अच्छा है। You know the number of people we have in church? How many people have you got? और We have a great number of people in our church. और, Do you know that? और वो लोग क्या कहते हैं कि देखा हमारे चर्च में कितनी भीड़ है, कितनी दुनिया है हमारे चर्च में। देखिए, Why don't you come here? We give refreshment and dinner also. और तुम हमारे पास क्यों नहीं आते? हम तो भाई लंच भी देते हैं, खाना भी देते हैं, रात का खाना भी देते हैं। Very well educated and very clean furniture and good environment, air conditioned rooms. और हमारे चर्च में बहुत सारा एसी भी है, साफ सफाई भी है, बहुत सारे मेज कुर्सियाँ अच्छे हैं। And we don't give. It's very difficult even to get the membership of our church, and you will be very lucky if we can give you a membership. और हमारे चर्च में सदस्यता भी है, अगर आप लेना चाहते हैं कोई मुश्किल नहीं है, हम आपके लिए आसान कर देंगे सदस्य बनने के लिए आपको। Can we believe God is being pleased by this kind of people? क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों से खुश हो रहा है? God is looking for simple people like Abel. ओ प्रभु परमेश्वर तो हाबिल की तरह बड़े ही साधारण लोग ढूंढ रहा है। He is not looking for big altars like Cain. वो काइन की तरह कोई बड़ी जगवेदी नहीं ढूंढ रहा। He says, if you want to worship me, to make me happy, you must know where will you find me. और ये प्रभु कहता है अगर तुम मेरी उपासना करना चाहते हो, आराधना करना चाहते हो, कुर्बानी देना चाहते हो, तो पहले ये देखो मैं कैसे मिलता हूँ, कहाँ मिलता हूँ। You will find me in my word. प्रभु कहता है मैं अपने वचन में मिलता हूँ। And in my word I have given the program and design how to please me. और मैंने अपने वचन में ही सारी अपनी योजना, अपना तरीका, नियम कानून बता दिए हुए हैं। All of us brethren who are today in the process of preparation to meet the bridegroom as bride. और हम सभी भाई जो उस चीज की तैयारी कर रहे हैं कि जब हम दुल्हन जो है दूल्हे से मिलने जा रही है।
Our worship should be pleasing to God. हमारी जो आराधना है वो उसको प्रभु को खुश करने वाली हो। We should have a clear conscience to God. हमारा जो है हृदय मन जो है प्रभु के साथ बिल्कुल साफ सही हो। Not like many message believers, we think we are superior people on earth. और इस तरह नहीं कि जैसे बहुत सारे संदेश के लोग हैं वो कहते हैं हमसे बढ़िया और अच्छा है ही नहीं कोई। This is even a worse feeling as compared to denomination, that some of the message believing brethren, they think they are very superior Christians. और जो भाई कहते हैं संदेश वाले हम तो बहुत अच्छे हैं, दूसरों से बेहतर, उनकी सोच तो संस्थाओं वालों से भी बुरी है। And the whole factor, the main factor is missing even between those congregations. और यही चीज है, देखिए उन्होंने मेन जो चीज है कलीसियाओं के अंदर वो मिस कर चुके हैं। They look down at each other. They have no. और देखिए एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और उनका आपस में प्रेम नहीं है। और वो जो प्यार देख रहे हैं वो दुनियावी प्यार देख रहे हैं। वो देखिए अगर वो उस आसमानी प्यार को देखते पाते तो उनका आपस में प्रेम होता। पहला कुरिन्थियां जो है और उसका 12 अध्याय और उसकी 13 आयत संत पौलुस कह रहा है यहाँ पर, वो मसीहों को कह रहा है। और उनको क्यों कह रहा है? So that we should be one mind in one spirit. ताकि हम एक मन हो, एक आत्मा हो। He is telling them, don't you know, brethren, that all those who have been baptized, they have been baptized by one spirit into the Christ. उन्होंने कहा कि हम सब ने जो बपतिस्मा लिया है वो सब ने एक होने का, एक आत्मा एक देह का लिया है। वो बपतिस्मा हमें इकट्ठा करता है, एक करता है। वो पानी वाले बपतिस्मे की बात नहीं कर रहा। और पानी का बपतिस्मा नहीं हमें एक करता। और देखिए बहुत सारे लोग हैं जो पानी का बपतिस्मा लेते हैं और निकल जाते हैं और फिर आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बपतिस्मे लिए हुए हैं क्योंकि उनके बपतिस्मे में पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। और संत पौलुस कहता है हम सब ने मसीह के साथ एक बपतिस्मा लिया है आत्मा में। And John was preaching that I baptize you in water, but one who is coming after me will baptize you by the Holy Spirit. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें रूह और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और इफिसियों 1:13 कहता है We have been sealed by the Holy Ghost unto the day of our redemption. और प्रभु का वचन कहता है इफिसियों 1:13 हम तो पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर लगाए हुए हैं ताकि उसके आने के दिन छुटकारा पाएं। And who will seal us? और किसने हमें जो है मोहर बंद किया? Only Lord Jesus Christ. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमें मोहर बंद कर सकता है। And when He will seal us, और जब उसने हमें मोहर बंद कर दिया शैतान हमें नहीं खोल सकता। Because that is the final work of God. क्योंकि यही प्रभु का आखिरी कार्य होता है विश्वासी की जिंदगी में। Brethren, to have a good desire to worship God is very good. देखिए मेरे भाइयों, प्रभु के लिए अच्छा हृदय रखना, उसकी उपासना करना बहुत अच्छी बात है। But we must worship according to His design, which is found in His word. लेकिन हमें उसकी आराधना जो है वो उस तरह करनी जैसा उसका कलाम कहता है। That design is not found in any church. और वो जो नक्शा जो तरीका वो कलीसिया में नहीं पाया जाता। That design only comes by the revelation of Holy Ghost when our heart is clean and it brings us back to the Word of God. वो नक्शा वो प्रभु की इच्छा जो है वो पवित्र आत्मा के प्रकाश के द्वारा हम पर प्रकट होता है। May God bless us, brethren, that we should keep a clear conscience and good heart and focus on the Word of God and seek His desire and His design how we should worship Him and stay with that fellowship which remains in that design.
और प्रभु भाइयों हमें आशीष बरकत दे और प्रभु हमारी अगुवाई करे कि हम प्रभु के कलाम के द्वारा ही हम उसकी उपासना करें, भक्ति करें। We don't go by the personality of the pastor. हमें पादरियों की पर्सनालिटी के पीछे नहीं जाना। We don't go by the richness, physical richness of the church. हमें दुनियावी चर्च की अमीर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के पीछे नहीं जाना। We don't go for the well-dressed people coming to church. हमें ऐसे उनके पीछे नहीं जाना जो बहुत अच्छे तरीके से बड़े महंगे कपड़े पहन के आ रहे हैं। God looks at the heart. प्रभु हमारा हृदय देखता है। What we are in our heart will take us to heaven. और जो भी हमारे हृदय में होगा वही हमें स्वर्ग लेके जाएगा। How we look like in this physical body will not take us to heaven. हम इस दुनियावी शरीर में कैसे लगते हैं वो मायने नहीं रखता। Our soul which is inside us must be redeemed. हमारा जो हमें जो जान दी है प्रभु ने हमें वो जरूरी है कि छुटकारा पाई हुई हो। If we are living or even if we go to grave, God will give us a new body by adoption that will never die. उसके बाद चाहे हम कब्र में भी चले जाएं तब भी प्रभु हमें नया शरीर दे देगा। We will never grow old there. हम वहाँ पे बूढ़े नहीं होंगे कभी। We will never cry. वहाँ हम कभी नहीं चिल्लाएंगे। We will never be asking for food and drink. वहाँ पर हम प्रभु से खाना, दुनियावी पानी नहीं मांगेंगे। We will never be thirsty. वहाँ हम कभी प्यासे नहीं होंगे। We will not tell like the rich man in Luke chapter 16, send somebody with a drop of water. हम तो उसे जो प्रभु के मत्ती के कलाम में आया, अध्याय में आया, चैप्टर में, बुक में कि धनी व्यक्ति ने कहा कि पानी की बूंद ही पिला दे, वो ऐसा नहीं होगा हमारे साथ। Like Lazarus, the man of God, we will be resting in the Lord. हम लाजर की तरह जो है प्रभु के घर में आराम करेंगे। We will be in the Sabbath of the Lord. और जो प्रभु का आराम का शब्द है उसमें। So we will not have trouble, brothers and sisters. भाई और बहनों हम जो है वो परेशानियों में नहीं होंगे। This is our prayer and hope for all of us. ये हमारी प्रार्थना आप सबके लिए। May God bless us. प्रभु हमें आशीष दे। Thank you, brother Jaswinder, for translation. आमीन brother. God bless you. God bless you. God bless you. Now we have finished our meditation hour and we will close. We thank God and we will take these thoughts to our homes and we will keep it in our prayers so that may the Lord help us to continue in these thoughts. प्रभु परमेश्वर हमारे साथ हो और ये सोच जो है हमने सुनी आज हमारे साथ लेके जाए। And God willing, if the Lord is still tarrying, we will come and meet again on this platform next Sunday. प्रभु का अनुग्रह हुआ तो हम अगले रविवार फिर इकट्ठे होंगे। May the Lord be with you all through the week. प्रभु आपको साथ पूरा हफ्ता रहे। God bless all, and may His name be praised. प्रभु आपको आशीष दे और उसके नाम को जला दे। We will now close this meeting with a prayer with Brother Surinder. हम भाई सुरेंद्र के साथ प्रार्थना इस सभा को खत्म करेंगे। We will thank God for everything that God has done for us. हर चीज के लिए धन्यवाद करते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए की है। Bye, Surinder. भाई सुरेंद्र। प्रेज़ द लॉर्ड भाई। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद को बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के इस शाम के लिए कि उसने ये अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगियों में, ये अवसर हमारी जिंदगियों में दिया ताकि हम आज शाम के समय अपने खुदावंद के नाम में इस प्लेटफार्म पर दूर दूर से इकट्ठा हो सके। ये हमारी किसी खूबी और लियाकत के द्वारा नहीं है, ये हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्राणों के रखवाले, हमारे आत्मा और देह के रखवाले जिंदा खुदावंद खुदा है प्रभु यीशु मसीह के वसीले से होने पाया, ताकि हमें ये शुभ अवसर मिला ताकि हम उसकी सुन कर सके इस प्लेटफार्म के माध्यम से। हम उसका बड़ा शुक्र करते हैं उसकी जिंदा उपस्थिति के लिए, क्योंकि उसका कलाम कहता है कि जहाँ 2 या 3 भी मेरे नाम में इकट्ठा होते हो मैं वहाँ हाजिर होता हूँ। पानी हम गिनती में बहुत थोड़े हैं लेकिन तेरे नाम में इकट्ठा है प्रभु, क्योंकि तूने हमें जो नाम दिया है प्रभु, जो आसमानों के नीचे लोगों के बीच में इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति के उद्धार के लिए तूने हमें एक नाम रखा है प्रभु। उस नाम में हम सब इकट्ठा हुए हैं प्रभु और एक मन एक चीज होकर प्रभु हमने तेरे वचन की ओर कंसंट्रेट किया है प्रभु। तेरे वचन को सीखा है प्यारे पिता, जो कि तेरा वचन हमारी जिंदगी है प्यारे पिता। हम तुझसे लेने के लिए आए हैं प्रभु,
प्यारे पिता, जो भी तेरा बच्चा यहाँ इस चैनल पे इकट्ठा हुआ है प्रभु यीशु मसीह, हर एक को तू नाम नाम बड़ी आशीष देना प्यारे बाबा आसमानी। हमारे परिवारों को बड़ी आशीष देना, हमारे खानदानों को बड़ी आशीष देना प्रभु, हमारे तमाम जरूरतों को प्रभु जी जो हमारे मांगने से पहले तू जानता है प्यारे पिता, तेरे कदमों में रखे प्यारे बाबा आसमानी। प्यारे पिता, हम अपनी बहुत सी चिंताएं लेकर, हम अपनी बहुत सी रिक्वायरमेंट लेकर तेरे चरणों में आज शाम इकट्ठा हुए हैं प्रभु, इस चैनल पे इकट्ठा हुए प्यारे पिता। तो हमारे हृदय के विचारों को जानता है प्यारे पिता, क्योंकि प्यारे बाप आसमानी मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना में बहुत फर्क है प्रभु, क्योंकि तेरा वचन प्रभु हार्ड और मांस को छेद कर अंदर तक गूदे गूदे तक छेद कर तो हमारे विचारों को जान लेता है प्यारे पिता। हम चाहे मुंह से कुछ ना बोले प्यारे प्रभु, जो हमारे विचारों में है प्रभु उन सब बातों को जानता है प्यारे पिता। हर एक बच्चे के विचार को तेरे चरणों में रखता हूँ प्यारे बापा आसमानी। यदि कोई किसी घटी और कमी और कमजोरी में आया है प्रभु और तेरे सामने प्रभु अपनी दुआ रखना चाहता है प्यारे पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेना प्यारे पिता। अपने बच्चों को बड़ी आशीष देना प्यारे पिता, हर एक को नाम बनाम बड़ी आशीष देना प्यारे बापा आसमानी। आज के वचन पर प्रभु तेरी आशीष जो प्यारे पिता हमें रिसीविंग हृदय दिए जाए प्रभु ईश्वर, हमें शुद्ध हृदय दिए जाए प्यारे पिता, और प्यारे बापा आसमानी इस तरह हमें मिले प्यारे प्रभु ईश्वर, ताकि प्यारे प्रभु ईश्वर हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि तेरी इच्छा अनुसार तेरे वचन के अलाइनमेंट में चलने वाले हो सके प्यारे पिता। हमारे कितने अच्छे एफर्ट्स भी प्यारे प्रभु ईश्वर हमें उद्धार नहीं दिला सकते, लेकिन प्यारे बापा आसमानी का धन्यवाद हो प्रभु, तूने हमसे वादा किया है कि उद्धार उस नाम में है जो तुम्हारे लिए दिया गया है, जो तुम्हारे लिए भेजा गया है। उस नाम में प्रभु तूने हमें बुलाया है, उस नाम में हम इकट्ठा है प्रभु, उस नाम में प्रभु हम तेरे पास आए हैं प्यारे पिता। हर एक बच्चे का उद्धार तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, हर एक बच्चे का उद्धार कर प्रभु, अपनी आत्मा से भर दे प्यारे पिता। आपा आज हमारा इकट्ठा होना प्रभु तेरी महिमा का और हमारे लाभ का कारण हो सके प्यारे प्रभु। यदि कोई हम में से कमजोर है, लाचार, बीमार है, वो शिफा वाला हाथ चला प्रभु, तेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि तू हमारी सहायता मदद ना कर सके प्रभु। प्यारे बाबा आसमानी, जो दुआ की गई है भाई अदनान के लिए प्यारे पिता लाहौर में प्रभु ईश्वर थे, जो पर वो उसको भाई और उसका परिवार जो सचेती में है प्यारे बाबा आसमानी, अपना छीटा हुआ हाथ प्रभु ईश्वर से अपना सामर्थ्य हाथ उस भाई के प्रति बढ़ा प्रभु, और उस भाई को प्रभु जोड़कर प्यारे बाबा आसमानी, ताकि वो चंगा हो सकता है प्रभु, और उसका परिवार के नाम को महिमा देने वाला हो सके, तेरे नाम को जलाल देने वाला हो सके प्यारे पिता। हमारे घरों में भी जो भी घटी और कमी पाई जाती है प्रभु, हमारे चारों ओर जो भी प्यारे पिता ईवस का प्रभु डांस होता है प्यारे प्रभु, जो ईवस हमें परेशान करते हैं प्यारे पिता, चाहे बीमारी के रूप में हो, चाहे तंगहाली के रूप में हो प्रभु, चाहे शत्रुओं के रूप में हो प्यारे प्रभु, यीशु तेरे नाम से डांट देता हूँ और तू हमसे ये दूर दफा किए जाए, तेरे बच्चे आजाद किए जाए प्यारे बाबा आसमानी, क्योंकि हम तेरे पास आए अपनी जिंदगी को लेने के लिए प्यारे पिता, क्योंकि जिंदगी का वारिस तू है प्यारे पिता, जिंदगी का वारिस तू है प्यारे बाबा आसमानी। तो प्यारे पिता हमें नए जन्म के अनुभव में हमें खड़ा कर प्यारे बाबा आसमानी, क्योंकि समय नजदीक है प्यारे बाबा आसमानी। हम तेरे वचनों को पढ़ते हैं, तेरे वचनों को सीखते हैं प्यारे पिता। प्यारे पिता हमारा सीखना, पढ़ना, बातचीत करना प्रभु ईश्वर जी तुझसे सब प्यारे प्रभु हमारे लाभ का कारण हो सके और तुझे महिमा देने वाला हो सके प्यारे बाबा आसमानी। आज जो वचन प्रचारा गया है प्रभु ईश्वर जी, इस पर तेरी आशीष हो, अपने सेवक को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। तूने अपने सेवक को हमारे बीच में रखा है प्रभु ईश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं। भाई इमैनुअल को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, ट्रांसलेट के कार्य में तुमने बड़ी सहायता मदद करी। भाई को दशेंद्र को बड़ी आशीष दे, उनके परिवारों को बड़ी आशीष दे प्यारे बाबा आसमानी। हर एक सुनने वाले भाई बहन को, बच्चे को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। हमारे कानों का खतना कर प्यारे बाबा आसमानी, हम सिर्फ और सिर्फ तेरी आवाज सुनने वाले हो सके और उसके अनुसार चलने वाले हो सके प्यारे पिता। आप आसमानी हमारे ये कुछ ऐसा कर प्रभु, ताकि इस दुनिया से हमारा लगाव टूट सके प्रभु, इस दुनिया के प्रति हम अंधे हो जाए प्यारे पिता, और तेरी आने वाली जो दुनिया है प्यारे पिता, उसके लिए हमारे हृदय को खोल दे प्यारे पिता, हमारी आंखों को खोल दे प्यारे पिता, ताकि वो जो चीजें जो आने वाली है, जो तूने अपने प्यार करने वालों के लिए रखी है प्रभु ईश्वर जी, उनके लिए प्यारे बापा आसमानी हम लालायित होने वाले हो सके प्रभु, उनके लिए एक्शन लेने वाले हो सके, उनके लिए चलने वाले हो सके प्यारे पिता, उनके लिए हम तैयार पाए जाएं प्रभु ईश्वर जी। क्योंकि तूने कहा कि मैं आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा प्यारे पिता, ये वादा सिर्फ तूने किया है प्यारे बापा आसमानी, और तेरा एक वादा सच्चा और अटल है प्रभु ईश्वर जी। आज तक तेरा कोई वादा नहीं करा प्रभु ईश्वर जी, और ये वादा भी प्रभु तो बहुत शीघ्र पूरा करने वाला है प्यारे पिता। बापा आसमानी सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो तू हमसे अपनी बातें करता है प्रभु। एकांत में जब
छोटे बच्चे परेशान होते थे तो उससे बातें करते थे प्यारे पिता। जब हम परेशान होते हैं प्रभु, हम तेरे पास चले आते हैं प्यारे बाप, अपने हृदय के विचारों को तेरे सामने रखते हैं प्यारे पिता। तेरा वचन हमें तसल्ली देता है प्यारे बाप। तूने कहा मत डर, मैं फौज से गाने वाला हूँ प्यारे पिता। हमने वचन के साथ के द्वारा हमने समझ लिया है, वचन के द्वारा तेरे दासों के द्वारा हमने समझ लिया है प्रभु। अब समय बहुत ज्यादा नहीं है प्यारे पिता, तो हमें तैयारी रखते प्यारे पिता। हमारी जो बत्तियां, हमारे जो है खाली पड़े प्यारे बाप आत्मा, तो अपने आत्मा से हमें पढ़ते प्यारे बाप आत्मा, ताकि प्यारे प्रभु ईश्वर से हमारे ये जलते रहे प्यारे प्रभु। हमारी बत्तियों को ट्रिम कर दे प्यारे पिता। हम अयोग्य है प्यारे बाप आस्तानी, हम जानते हैं हमारे अंदर कोई खूबी लियाकत नहीं है प्यारे पिता, लेकिन प्यारे बाप आस्तानी हम तेरी ओर निभाते हैं प्यारे प्रभु ईश्वर से। तूने कहा था जो दिन को निकट आते को अपने सिरों को ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। हमारे छुटकारा देने वाले प्रभु की ओर हम सब निहारते हैं प्यारे बाप आस्तानी, क्योंकि तू ही सब कुछ कर सकता है प्यारे बाप आस्तानी। हमारे अफर्ट्स शून्य है प्यारे बाप आस्तानी प्यारे पिता। हमारे कितने भी धार्मिक काम हो प्रभु, सब पहले चित्रों के समान है प्यारे प्रभु ईश्वर जी। लेकिन तेरा धन्यवाद हो, तुमने एक आशा दी है कि मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले जिनको चुन लिया है उनमें से एक को भी कहूंगा प्यारे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। तो अपने बच्चों को ढूंढ रहा है, अपने बच्चों को तैयार कर रहा है प्रभु, ताकि वो दिन आए और तू हमें ले जाए प्यारे बाप आस्तानी। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इसमें चैनल पर प्रभु तूने जो हमसे बातें की है प्यारे पिता, ये हमारे हृदयों में बस जाए प्यारे प्रभु ईश्वर जी, और इनके अनुसार हम 100 गुना 60 गुना फल लाने वाले हो सके। आप आसानी तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी मर्जी के अनुसार चलने वाले हो सके। पिता आप हमारी सहायता मदद करें, हर एक बच्चे पर प्रभु सहायता मदद करें। इस चैनल पर प्रभु हमारा जो भी जितने इकट्ठा है प्रभु ईश्वर जी, हमारा इकट्ठा होना सब कुछ दिखाने वाला हो सके प्यारे प्रभु। जब हम फिर द्वारा मिलते हैं प्यारे पिता, इस मीटिंग को हाथ में सौंपते हैं प्रभु ईश्वर जी प्यारे पिता। जो भी हमने गाँव जाकर तेरी स्तुति बढ़ाई की है, वचन पढ़ने में जो तेरी स्तुति बढ़ाई की है, सब तुझे कबूल हो प्यारे पिता। हम आपके होठों का बलिदान तेरे चरणों में रखते हुए आपने नहीं विचार करता प्रभु ईश्वर जी के नाम, प्रभु ईश्वर जी के नाम है। Amen. 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 God bless you, brother. God bless you, brother Surinder. God be praised. प्रभु का बहुत धन्यवाद प्रार्थना के लिए और इस मीटिंग के लिए भी कि प्रभु ने हम सबको इकट्ठा किया और ऐसा होने दिया कि हम